کلام خدا کو جو آج ہم سیکھیں گے، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم جب ہم نے دیکھا تھا پچھلے سال، تو ہم نے مسیح کی پیدائش پہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سیکھی تھیں کہ اس کی پیدائش کا دن جو ان سے وہ کس طریقے سے ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر ہم نے جو ہے سیکھا تھا چھٹے مہینے کے جو ان سے اس کا کنسیپٹ کیا ہے کلام خدا کے اندر، جب الشبا کا چھٹا مہینہ ہے۔ ہم نے ایک اور جگہ پہ جو ہے ابیا فریق جو ہے جو ذکریہ کاہن ہے ابیا فریق سے، اس کا دیکھا تھا کہ اس کا ٹائم پیریڈ کیا تھا۔ ہم نے جو ہے وہ ایک اور طریقے سے آپ مسیح کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش کو معلوم کر سکتے ہیں، اور وہ جو ان سے وہ سائنٹیفک جو ہے وہ وے ہے، اس کا سائنٹیفک ریزننگ ہے جو کہ چائنیز ایسٹرونومی جو ان سی ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ اس کو جو ان سے ہم نے ٹچ نہیں کیا کیونکہ وہ ان گریٹ ڈیٹیلز جو ان سے وہ جانا پڑتا ہے، اور اگر کسی کی ایسٹرونومی میں جو ان سی ہے اس کو علم نہیں ہے یا اس سے وہ جو ان سے مشکل اس کو درپیش آتی ہے تو اس کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ دو بائبل کے حوالوں سے مسیح کی تاریخ پیدائش کو معلوم کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے جو ان سے آج سے شاید 3-4 سال پہلے جو ہے مجوسیوں کے بارے میں سرسری سا جو ان سے وہ بھی سیکھا تھا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ مجوسیوں کے بارے میں کچھ مزید جو ان سے وہ سیکھ سکیں، اور اگر ہمیں جو ان سے اس کی ڈیٹیلز کے اندر جا کے اس کو سیکھنے کا موقع ملا تو اس کے اندر بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں جو کہ ہم جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ دا سٹار آف بیت لہم جو ہے بیت لہم کا ستارہ جو ان سے اس کو نہیں سیکھا تھا۔ اگر ہم نے جو ان سے ہمیں یہوہ باپ نے توفیق دی تو ہم اسی کے ساتھ دا سٹار آف بیت لہم یعنی بیت لہم کے ستارے کو بھی سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ ستارہ ہمیں کیا سکھانا چاہتا تھا۔ ہم جو ان سے جو آج کا ہمارا موضوع ہے یہ ہے مجوسیوں کی آمد، دا وزٹ آف دا وائس مین۔ اس کے لیے ہم متی رسول کی انجیل 2 باب میں آتے ہیں اور اس کی پہلی 12 آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بے شمار مرتبہ پڑھا بھی ہے اور ہم نے اس کو بے شمار مرتبہ سنا بھی ہے۔ ہم اس کو آج جو ہے جو سیکھیں گے اس کے اندر حصوں کو سیکھیں گے، کیونکہ اس کے اندر یہ متی رسول کی انجیل 2 باب جس میں مجوسیوں کی آمد کے بارے میں ذکر ہے، یہ بیسیکلی پہلی 12 آیات جو سی ہیں یہ 4 سے 5 حصوں پہ ہم اسے جو سے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی پہلی آیت سے، جب یسوع ہیرودیس بادشاہ کے زمانہ میں یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوا تو دیکھو کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر ہیرودیس بادشاہ اور اس کے ساتھ یروشلم کے سب لوگ گھبرا گئے، اور اس نے قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا کہ مسیح کی پیدائش کہاں ہونی چاہیے۔ انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیت لحم میں، کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ آئے بیت لحم یہودا کے علاقے، تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں، کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی غلبانی کرے گا۔ اس پر ہیرودیس نے مجوسیوں کو چپکے سے بلا کر ان سے تحقیق کی کہ وہ ستارہ کس وقت دکھائی دیا تھا، اور یہ کہہ کر انہیں بیت لحم کو بھیجا کہ جا کر اس بچے کی بابت ٹھیک ٹھیک دریافت کرو، اور جب وہ ملے تو مجھے خبر دو تاکہ میں بھی آ کر اس سے سجدہ کروں۔ وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا، یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر ٹھہر گیا جہاں وہ بچہ تھا۔ وہ ستارے کو دیکھ کر نہایت خوش ہوئے، اور اس گھر میں پہنچ کر بچے کو اس کی ماں مریم کے پاس دیکھا اور اس کے آگے گر کر سجدہ کیا، اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر اس کو نظر کیا،
और हेरोदीस के पास फिर ना जाने की हिदायत पाक ख्वाब में पाकर दूसरी रात से अपने मुल्क को रवाना हुए। अब इसको हमने पहली 12 आयत को जो मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब में मज़कूर है, हमने इसको पढ़ा है। इसको हम मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करके उनको सीख सकते हैं कि ये क्या चीज़ जो उनसे बताना चाह रहा है, और फिर इसी के अंदर से कलाम खुदा आपको सवालात के ज़रिए से सिखाएगा कि ये जो है ये इनकी आमद का मकसद क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कितने मजूसी कलाम खुदा इनको बयान करता है, कितने जो उनसे इनके जो उनसी है जो पेश कर रहे हैं तोहाइफ, वो कौन से तोहाइफ हैं, और इन्होंने जो उनसे सजदा जो किया है वो सजदा क्यों किया है, और फिर जो उनसा है यहोवा बाप से जो है वो हदायत पाकर ये क्यों रवाना होते हैं। ये हम सारी चीज़ों को जो उनसे हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर मजूसियों की आमद द विजिट ऑफ द वाइस मैन में सीख सकें। हम देखते हैं कि इसके अंदर जो उनसे है जो मजूसी हैं वो पूरब से चलते हैं और वो मसाया की तलाश में आते हैं। यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है उसको जो है वो देखने आ रहे हैं। हम इसके अंदर ये भी देख रहे हैं कि उनकी आमद के बाद एक क्राइसिस भी डेवलप होता है, और उसमें आप देखते हैं कि जब मजूसी हदायत पाकर चुपके से रवाना हो जाते हैं तो उसके बाद एक क्राइसिस डेवलप होता है, क्योंकि जो हेरोदीस बादशाह है उसको ये एहसास होता है कि मजूसियों ने उसके साथ धोखा किया है, और उस धोखे के नतीजे में वो क्राइसिस जन्म लेता है और 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्ल करवा दिया जाता है। हम जो उनसे इसको सीखने के लिए हम देखते हैं कि जो हेरोदीस बादशाह है वो उसकी जो हमने इसको लास्ट टाइम जो है वो सीखा था, इसके अंदर हम आज उस डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इसके अंदर देखेंगे कि जो हेरोदीस बादशाह है वो 4 से 2 BC में जो उनसे है उसकी वफात होती है, और इसका मतलब है कि मसाया जो उनसे है उससे पहले जो है उसका जन्म हुआ है। हम यहाँ पे जो सीक्वेंस वो देख रहे हैं कि अगर उसकी 2 से 4 BC में जो है वफात होती है और मसाया उससे पहले पैदा होता है, तो इसका मतलब है कि मसाया जो है या तो 4 BC के शुरू में उसकी पैदाइश है या 5वीं BC के अंदर उसकी पैदाइश है। आज हमारा मौजू ये नहीं है, हम उसको देख चुके हुए हैं कलाम खुदा से। हम इसके अंदर ये भी देख रहे हैं कि मजूसियों के जाने के फौरन बाद जो है हेरोदिस बादशाह जो है जब उसे एहसास होता है कि मजूसी ने उसके साथ हस्ती की तो वो 2 या 2 साल से छोटे बच्चों को मरवाता है। अब ये क्यों मरवाता है, ये एक लैदा टॉपिक है। रब ने चाहा तो हम इसको भी सीखेंगे कि इनोसेंट जो चाइल्ड है उन्हें कत्ल जो करवाया जाता है वो क्या हमें कलाम खुदा उसमें से सिखाता है। जब हमने इस कलाम खुदा को पढ़ा तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मसाया है उसकी पैदाइश हुई है, और पूरब से जो उनसे है वो मजूसी जो है उसे देखने आए हैं। इसको जब आप हिस्से को देखते हैं तो पहली 2 आयत को अगर आप देखें तो पहली 2 आयत हमें बताती हैं मजूसियों की आमद को। हम इसको दोबारा से अगर देखें तो पहली 2 आयत तो उसके अंदर हमें मिलता है, पहली 2 आयत मत्ती रसूल की इंजील, तो वहां पे कलाम खुदा में बता रहा है जब मसाया हेरोदिस बादशाह के जमाने में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हो चुका है, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, क्योंकि पूरब में उसका सितारा देकर हम उसे सजदा करने आए हैं। तो पहली 2 आयत जो उनसी है मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब, वो हमें जो है वो यूं सिखा रही हैं कि मजूसी जो उनसे हैं वो
मसाया मेरे और आपके निजात दहिंदा जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके इस जमीन पर उतर आया है एक बच्चे के रूप में। वो बच्चा पैदा हो चुका हुआ है, उसका तजस्सुम हो चुका हुआ है। उस तजस्सुम के बाद जो है वो उसे देखने के लिए और सजदा करने आए हैं। अमूमी तौर पर यहाँ पे जो अगर आपने मूवीज में देखा होगा या नेगेटिविटी की जो है सीन्स में देखा होगा, तो उस बच्चे को जो है मजूसी जो है वो वहीं पर आपको तमाम गडरियों के साथ, भेड़ बकरियों के साथ, माँ मरियम यूसुफ के साथ जो है वो नजर आते हैं। यहाँ पे कलाम खुदा पहली 2 आयात में आपको बता रहा है कि बच्चा पैदा हो चुका हुआ है। उस बच्चे की पैदाइश के बाद वो सितारा देखते हैं, सितारा देखकर वो जो है वो चलते हैं। और जो है वो चल कहाँ से रहे हैं? वो पूरब से चल रहे हैं। और पूरब से जो है जब वो आते हैं, ये तकरीबन 900 मील का फासला है। कोई उनके पास जो है वो आज की मॉडर्न ट्रैवल जो सी है वो सहूलत मौजूद नहीं है, ना बसेस हैं, ना ही क्या उस कहते हैं वो उनके पास एयरप्लेन है। वो जो है वो अपने ऊंटों पर जो है वो सवार होकर वो आ रहे हैं और 900 मील का फासला है। रस्ते में ना ही स्ट्रीट लाइट्स हैं, मुख्तलिफ जो सी हैं प्रॉब्लम्स जो है वो फेस आती हैं जब आप 900 मील का फासला तय करते हैं। और वो एक वक्त लग रहा है उन्हें कि वो बच्चे की पैदाइश के बाद उसका सितारा देखकर पूरब में वो चलते हैं और उस बच्चे को जो है वो सजदा करने आ रहे हैं। हम यहां पे जो है देखते हैं कि जब वो पहुंचते हैं तो वो कलाम खुदा में हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि वो बच्चे का जब वो उन्होंने, कौन सा बच्चा? जो यहूदियों का बादशाह है, कोई आम बच्चा नहीं। कलाम खुदा ये बता रहा है जब यहोवा शाह हेरोदिस बादशाह के जमाना में यहूदिया के बैतल हम में पैदा हुआ, तो देखो कई मजूसी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, पूरब से चले हैं, यरूशलेम में आ रहे हैं, क्योंकि यरूशलेम जो है वो यहूदिया का दारुल खिलाफा है, कैपिटल है, द सीट ऑफ द किंग है। वहां पे किंग का तख्त जो है लगता है। और मजूसी लामहाला कोई भी और शख्स जब यहूदियों का बादशाह पैदा हो रहा है तो वो बादशाह जो उनसे किसी और शहर में वो नहीं जाएंगे, वो उस कैपिटल के अंदर आएंगे जहां पे बादशाह मौजूद है, जहां पे दारुल हुकूमत मौजूद है, और वहीं पे आकर वो पूछेंगे। और दूसरी आयत हमें बताती है कि वो डायरेक्ट अब सवाल करते हैं यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? डायरेक्ट जो है वो पहुंच चुके हैं यरूशलेम में, 900 मील का सफर तय कर आए हैं, पूरब से वो चले हैं। यरूशलेम में पहुंचकर वो डायरेक्ट सवाल करते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है? क्योंकि पूरब में उसका सितारा देखकर हम उसे सीधा करने आए। उसका बच्चा जो पैदा हुआ है उसका सितारा पूरब में देखा गया है। बच्चा अभी मां के पेट में नहीं है कि उसका सितारा देख लिया गया। बच्चा जो पैदा हुआ है उसका सितारा हम देखकर पूरब से आए हैं। और हमने सितारा कहां देखा है? पूरब में देखा है, जो कि यहां से 900 मील के फासले पे है। तो कलाम खुदा आपको यह बताता है कि जो नेगेटिविटी जो जनरल ट्रेडिशंस हैं वो गलत जो सी हैं, वो सिर्फ ड्रामेटाइज की गई हैं। जो है कलाम खुदा आपको सिखा रहा है कि मजूसी जो पूरब में उस बच्चे की पैदाइश के बाद सितारा देखते हैं, उसके सितारे को वो स्टडी करते हैं, और हम ये देखेंगे कि वो ये मजूसी कौन है आगे चल के सीखेंगे। और वो फिर जो है 900 मील का फासला तय कर
यरूशलेम में आए हैं और उनसे ये सवाल करते हैं। ये पहली दो आयात जो सी हैं हमें सिखाती हैं कि जो नेगेटिविटी सीन है कि मजूसी उस चरनी के पास खड़े हैं गडरियों के साथ, माँ मरियम और यूसुफ के साथ, वो कलाम खुदा उसको गलत करार देता है। हम जब इसकी तीसरी से छठी आयत में आते हैं तो वहां पे हम मजीद ये सीखते हैं, जब वो ये सवाल उन्होंने किया, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। एक गैर यहूदी सितारा शिनास, सितारों के माहिर समझे जाने वाले, पूर्व में यहूदियों के बादशाह का सितारा देखकर आ रहे हैं कि वो पैदा हुआ है, यरूशलेम में आके सवाल करते हैं और यरूशलेम में तो बच्चा मौजूद ही नहीं है। तो लामहाला जब वो ये सवाल करते हैं कि यहूदियों का जो बादशाह है वो पैदा हुआ है, वो कहां है, तो इस वक्त जो हेरोदीस जो कि यहूदियों का बादशाह है उसके यहां तो किसी बच्चे की पैदाइश नहीं है। तो लामहाला सब लोग घबराएंगे। लामहाला जो उस वक्त का यहूदियों का बादशाह हेरोदीस है वो भी घबराएगा। और कलाम खुदा यही आपको बता रहा है, ये सुनकर हेरोदिस बादशाह और उसके साथ यरूशलेम के सब लोग घबरा गए। अब ये आगे चल के हम सीखेंगे कि हेरोदिस बादशाह क्यों घबराता है और लोग क्यों घबराते हैं। और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसाया की पैदाइश कहां होनी चाहिए। हेरोदिस बादशाह यहूदी, उसके रुफ़ाकार मसाया की पैदाइश से वाकिफ है। उन्हें इल्म है कि मसाया पैदा हुआ है और उन्हें इल्म है कि जब मसाया आएगा तो उस वक्त क्या होगा। वो कलाम खुदा की हकीकतों से वाकिफ है और ये घबराहट उसी का निशान है। ये इसी तरीके से है कि मैं और आप गुनाह की दलदल में हैं, हमने गलत काम किए हैं और जैसे ही हमें पता चलता है कि पुलिस हमारे दरवाजे पर दस्तखत दे रही है तो हमारी हवाइयां उड़ जाती हैं। क्योंकि हर वो शख्स जो कि कलाम खुदा की नफी कर रहा है उसके गुनाह का मर्तकब ठहर रहा है, जब अदालत का वक्त आएगा तो वो थरथराएगा, कांपेगा। और यही वो वजह है कि हेरोदिस बादशाह और उसके रुफ़क़ाकार जब पूरब से लोग आकर ये कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है, तो वो घबरा जाते हैं और वो फौरन जो है तमाम सरदार कहनों को जमा करता है, फिकियों फरीसियों को जमा करता है और उनसे एक ही सवाल पूछता है कि मसाया की पैदाइश कहां पे होनी चाहिए। क्योंकि यरूशलेम में अगर उसकी पैदाइश हुई है तो मुझे बताओ कि वो कहां पर है। आप यहां पे देख रहे हैं चौथी आयत में, और उसने कौम के सब सरदार काहिनों और फिकियों को जमा करके उनसे पूछा कि मसाया की पैदाइश कहां होनी चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है। किस नबी की मार्फत? मीका नबी की मार्फत। हम उसके अंदर भी चलेंगे। क्योंकि नबी की मार्फत यूं लिखा है, आए बैतलहम यहूदा के इलाके, तो यहूदा के हाकों में हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा, तुझ में से बैतलहम में से एक सरदार नमूदार होगा
जो मेरी उम्मत इसराइल की गलाबानी करेगा। हमने ये सीखा था कि हम किस तरीके से उस जैतूनदार दरख्त में पैबंद हो सकते हैं। हम अगर इसराइली अपने आप को नहीं कहलवाते, इसराइली जमीनी लिहाज से नहीं, इसराइली जिस्मानी लिहाज से नहीं, इसराइली नस्ली लिहाज से नहीं, इसराइली उस जैतूनदार शाख की वजह से जो उस दरख्त के अंदर पैवस्त हुई है रूहानी लिहाज से, तो तभी वो कहता है कि बैतलहम यहूदा के इलाके तो हरगिज सबसे छोटा नहीं, तुझ में से एक सरदार निकलेगा जो मेरी उम्मत, इसराइल उसकी उम्मत है। इसराइल मुल्क का नाम नहीं, इसराइल एक वो कौम है जो उसकी चुनी हुई कौम है, और हर वो शख्स जो मसाया पर ईमान लाता है, जो उसे अपना निजात दहिंदा समझता है, वो उस कौम में शामिल किया जाता है। और इसलिए वो कहता है कि मेरी उम्मत की वो निगहबानी करेगा। हम यहां पे देख रहे हैं कलाम खुदा के अंदर से कि ये दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा 2 आयात पर हमने देखा कि मजूसी जो उनसे हैं पूरब से चलते हैं, यहूदियों के बादशाह की पैदाइश का सितारा देखते हैं पूर्व में, वहां से आते हैं यरूशलेम में और यरूशलेम में आके सवाल करते हैं। दूसरे हिस्से में हम देख रहे हैं जो 3 से 6 आयत पर मुश्तमिल है, जब वो सवाल किया जाता है तो हेरोदीस और तमाम यरूशलेम के लोग घबरा जाते हैं, और घबराहट को हमने महसूस किया। वो घबराहट इस वजह से है क्योंकि वो कलाम खुदा से वाकिफ हैं कि कलाम खुदा ये बता रहा है कि मसाया का जन्म होगा। तमाम यहूदिया के लोग ये जानते हैं, बनी इस्राएल जानते हैं कि वो एक बच्चा पैदा होगा, लेकिन वो उसे मानने से इनकारी हैं अभी तक। मीका नबी ने हजारों साल पहले उन्हें बता दिया कि एक बच्चा पैदा होगा। हेरोदिस बादशाह जो है ये जानता है, उसके रुफ का कार जानते हैं, फिकी और फरीसी जानते हैं जो शरा के उस्ताद हैं, और वो फौरन बताते हैं कि मसाया की पैदाइश कहां पर होगी। अगर कलाम खुदा के अंदर मसाया की पैदाइश का जिक्र है तो फिर यहूदी किस तरीके से इनकार कर सकते हैं कि वो पैदा नहीं हुआ। हम यहां पर देखते हैं कि 3 और 6 आयत तक हमें मसाया की पैदाइश की पेशन गोई का जिक्र मिलता है, और ये जिक्र जो है ये हमें बताता है कि वो इसराइल का चरवाहा ठहरेगा, वो इसराइल की भेड़ों का रखवाला ठहराया गया है, और वो बैतलहम में जो है पैदा होगा। तीसरा सेक्शन जो है इसको हम 2 आयत पे लेते हैं, 7वीं और 8वीं आयत को। इस पर हेरोदीस ने मजूसियों को चुपके से बुलाकर उनसे तहकीक की कि वो सितारा किस वक्त दिखाई दिया था, और ये कहकर उन्हें बैतलहम को भेजा कि जाकर उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो, और जब वो मिले तो मुझे खबर दो ताकि मैं भी आकर उसे सिजदा करूं। इस थर्ड हिस्से में जो 7 से 8वीं आयत तक मुश्तमिल है, हम यहां पर देखते हैं कि हेरोदीस मजूसियों को एक दफा फिर से तलब करता है। वो फिकियों फरीसियों के सामने तलब नहीं करता दोबारा उन्हें, वो उसी वक्त जो है उन्हें ये नहीं कहता। कलाम खुदा बता रहा है चुपके से। नेगेटिविटी आई एम नॉट श्योर कि अगर ये जब क्रिसमस स्टोरी चल रही होती है
تو اس میں ہیرودیس بادشاہ جب فکی اور فریسی بتاتے ہیں تو اسی وقت وہ نیگیٹیوٹی سین دکھا رہا ہے کہ ان سے بات کر رہا ہے، کلام خدا کہہ رہا ہے کہ انہیں علیحدگی میں دوبارہ سے بلایا جاتا ہے۔ اور انہیں کہا جاتا ہے، ان کے ساتھ بحث کی جا رہی ہے۔ کلام خدا کہہ رہا ہے کہ وہ تحقیق کر رہا ہے، وہ ایسے آسانی سے نہیں انہیں جان چھوڑا ان کی، وہ تحقیق کر رہا ہے۔ اور صرف بظاہری طور پر اگر دیکھا جائے تو بادشاہ اپنے حواریوں کے ساتھ، جو اس کے چیدہ چیدہ حواری ہوں گے، کلام خدا کے اندر تو اس کا ذکر نہیں، کلام خدا تو صرف یہ بتا رہا ہے کہ ہیرودیس نے تحقیق کی، لیکن ممکن ہے کہ اس نے اپنے چیدہ چیدہ حواریوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ بیٹھا ہو اور ان سے تحقیق کی ہو، مکمل معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہو کہ وہ کون سا وقت تھا جب تم نے جو ہے اس کا ستارہ دیکھا۔ وہ اس وقت کو ناپنا چاہ رہا ہے کہ کب میرا اور آپ کا نجات دہندہ جسم کی صورت اختیار کر کے زمین پر آیا ہے۔ یہ بھی کلام خدا آپ کو ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ مجوسی اس وقت نہیں موجود تھے جب بچہ چرنی میں پیدا ہوا ہے۔ یہ آگے چل کے مزید یہ آگے اس کو جو ہے وضاحت پیش ہوگی اس کی۔ اور تحقیق کرنے کے بعد جب وہ یہ معلوم کر لیتا ہے، وہ ٹائم فریم کو فائنڈ آؤٹ کر لیتا ہے کہ یہ اتنا وقت انہیں لگا ہوگا، ایسے نہیں 2 سال سے کم عرصے، 2 یا 2 سے چھوٹا بچہ تمام جتنے لڑکے تھے انہیں مروا دیا گیا۔ یہ اس تحقیق کا نتیجہ تھا جو اس نے اس مجوسیوں کے ساتھ کی ہے۔ کلام خدا آپ کو اشارے دیتا ہے کہ مجوسیوں کو کتنا عرصہ لگا ہے، مجوسیوں نے اس کا پورا ستارہ کب دیکھا ہے۔ انہیں اس کا ستارہ دیکھ کر وہ 3 مجوسی کوئی دوست نہیں ہے، کوئی آپس میں رشتہ دار نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی ایک ہی ملک کے بادشاہ نہیں ہے، ایک ہی ملک کے باشندے نہیں ہیں، لیکن کلام خدا بتا رہا ہے کہ کئی مجوسی، اور 3 کا بھی ذکر نہیں ہے، وہ مجوسی آ رہے ہیں، پورب میں ستارہ دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام مجوسی مشرق سے ہیں، پورب میں اس کا ستارہ دیکھتے ہیں، اور ستارہ دیکھ کر ہم دیکھیں گے کہ مجوسی کون ہوتے ہیں، وہ پھر یروشلم کی طرف آتے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ ہیرودیس بادشاہ چپکے سے مجوسیوں کو طلب کرتا ہے، ان سے ٹھیک ٹھیک وقت کا حساب لگاتا ہے کہ کب انہوں نے ستارہ دیکھا اس بچے کا، کیونکہ ستارہ ہم نے سیکھا کہ ستارہ اس وقت نمودار ہوا جب بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے کا پیدائش کا ستارہ دیکھ کر ہم آئے ہیں، اور ستارہ کہاں پہ ہم نے دیکھا ہے؟ پورب میں دیکھا ہے، اور وہ بچہ کہاں ہے؟ جو یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ وہ ٹھیک ٹھیک وقت دریافت کر رہا ہے، اور اب وہ انہیں یہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ، جا کر اس بچے کو دیکھو اور واپس آ کر مجھے بھی بتاؤ، تاکہ میں بھی آ کر اسے سجدہ کروں۔ اور ہمیں علم ہے کہ وہ سجدہ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس بچے کے قتل کی جو ہے نیت سے اس کو سوچ رہا ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہوئے اس کے آخری حصے میں، جو کہ 4تھا حصہ ہے، اس میں جب ہم بڑھتے ہیں تو وہ 9 سے 12ویں آیت پہ جو ہے مشتمل ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہ بادشاہ کی بات سن کر روانہ ہوئے، اور دیکھو جو ستارہ انہوں نے پورب میں دیکھا تھا وہ ان کے آگے آگے چلا،
यहां तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहां वो बच्चा था। वो सितारे को देखकर नहायत खुश हुए और घर उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मिरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सिजदा किया और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और मुर उसको नजर किया और हेरोदिस के पास फिर ना जाने की हिदायत ख्वाब में पाकर दूसरी राह से अपने मुल्क को रवाना हुए। 9 से 12 आयत कलाम मुकद्दस में जब आप पढ़ते हैं मत्ती रसूल की इंजील 2 बाब की, तो वहां पे आप देखते हैं कि हेरोदिस बादशाह जब चुपके से तहकीक करके उन्हें रवाना करता है तो वो वहां से रवाना होते हैं। और जैसे वो रवाना होते हैं, हेरोदिस बादशाह के पास से निकलते हैं, तो वो सितारा जो कि पूरब में उनकी रहनुमाई करता हुआ यरूशलेम तक लेकर आया था, वो सितारा फिर से नमूदार हुआ है। अब इसी सितारे को सीखने के लिए कि ये सितारा किस किस्म का सितारा है कि जो सिर्फ मजूसियों को नजर आता है, ये सितारा और किसी और को नजर नहीं आ रहा, और ये कैसा सितारा है जो कि कुछ वक्त के लिए निकलता है और फिर गायब हो जाता है और फिर कुछ वक्त के लिए नमूदार हो जाता है और फिर जो है एक घर के ऊपर जाकर ठहर जाता है। अगर रब ने चाहा तो हम इस सितारे को सीखेंगे कि ये सितारा क्या है। क्या ये वाकई एक नॉर्मल स्टार है? क्या ये एक आम सितारा है? क्योंकि आम सितारा तो सभी को नजर आना चाहिए। आम सितारा की जो नमूदार है उसकी टाइम लेंथ है, वो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 दिन के लिए तो वो नजर आए या 6 महीने के लिए तो नजर आए और फिर उसके बाद 4 दिन के लिए गायब हो जाए और फिर से जो है नजर आना शुरू हो जाए और फिर वो चलना शुरू हो और एक घर के ऊपर जाके ठहर जाए। हम यहां पे देखते हैं कि वो मजूसी उस सितारे की रहनुमाई में चलते हुए एक घर पर जब वो सितारा ठहर जाता है तो उस घर के अंदर जाते हैं और उस घर के अंदर क्या देखते हैं? एक बच्चा और मां मरियम को। कलाम खुदा क्या बता रहा है? कलाम खुदा बता रहा है, और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी मां मरियम के पास देखा। उस बच्चे को, अब वो बच्चा क्या चंद घंटों का बच्चा है? क्या वो जो है एक दिन का बच्चा है? क्या वो जो उनसे चंद माह का बच्चा है? क्या वो बच्चा साल का है या 2 साल का है? कलाम खुदा आपको इशारा देता है कि वो जो बच्चा पैदा हुआ था अब वो एक घर के अंदर मौजूद है। और ये भी आपको ये बताता है कि द स्टोरी ऑफ नेगेटिविटी जो है पिक्चराइजेशन के हिसाब से तो शायद अपने अंदर माने रखती हो, लेकिन बिब्लिकली उसके अंदर फ्लॉज मौजूद हैं। हम देखते हैं कि जब वो मां मरियम और बच्चे को देखते हैं तो अगली आयत हमें बताती है, उसी आयत में बताती है 11वीं आयत में, कि उसके आगे गिरकर सजदा करते हैं, उसके आगे झुकते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और सजदा करते हैं। और सजदा जो है ना सिर्फ बनी इसराइल, गैर अक़वाम भी जो है जो सजदा किया जाता था वो या तो खुदा को, माबूद को किया जाता था, या फिर जो है सजदा नहायत ही ताकतवर हस्ती को किया जाता था जिसमें बादशाह शामिल होता था।
اور اپنے ڈبے کھول کر سونا اور لبان اور مر پیش کیا. اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس نے جو انہیں کہا تھا کہ مجھے بھی آ کر بتاؤ تاکہ میں بھی جا سکوں، تو 12ویں آیت بتاتی ہے کہ وہ خواب میں ہدایت پاتے ہیں اور وہ کسی اور رستے سے، دوسرے رستے سے، جو کہ ہیرودیس جس رستے سے واقف نہیں ہے یا جس رستے پہ اس کا پہرا نہیں موجود ہوگا، اس سے وہ واپس پورب کو روانہ ہو جاتے ہیں. کلام خدا ہمیں جو ہے وہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس متی رسول کی انجیل 2 باب اس کی جو پہلی 12 آیات ہم نے پڑھی ہیں اس کی آبزرویشن کر سکیں، اس سے کلام خدا کے مطابق سیکھ سکیں کہ یہ جو پہلی 12 آیات جو مجوسیوں کی آمد کا ذکر کرتی ہیں، یروشلم کے اندر ہیرودیس سے مکالمہ، اس گھر میں پہنچنا، اس بچے کے آگے سجدہ کرنا اور واپسی پورب کی طرف روانہ ہونا ہم نے یہاں پہ سیکھا. یہاں پہ ہم چند ایک جو ہے وہ ہمارے ذہنوں کے اندر سوالات وہ بڑھتے ہیں. اس کے اندر اگر ہم آج ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے ہم اس کو پورے طور پر تو نہیں جو ان سے ہے وہ ان سوالات پہ ہم جا سکیں گے، لیکن ہم 2 چلیں سوال اس میں سے لیتے ہیں ابھی. ایک سوال جو ان سے جو ہم لیں گے کہ وہ مجوسی کون تھے، اور دوسرا ہم اس کے اندر لیں گے کہ انہیں یہودیوں کے بادشاہ کے متعلق کیسے پتہ چلا. کلام خدا کے اندر سے ہم نے پڑھا کہ پورب کے مجوسی ہیں، تو ہم یہ سیکھیں گے کہ مجوسی کون ہوتے ہیں، اور یہ پورب کے جو مجوسی تھے یہ کون تھے، اور یہ کیا واقعی 3 تھے یا 3 سے کم ہے یا 3 سے زیادہ ہے. لیکن کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کم از کم ایٹ لیسٹ 2 ضرور ہیں. اور دوسرے سوال کے اندر ہم کوشش کریں گے سیکھنے کی، اگر وقت نے اجازت دی، کہ انہیں کیسے معلوم ہوا یہودیوں کے بادشاہ، ان کا کیا انٹرسٹ تھا، ان کا انٹرسٹ ڈیولپ کیسے ہوا. کلام خدا آپ کو سکھاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ کیسے ڈیولپ ہوا انٹرسٹ. ہم جو عمومی طور پر جو یہ مجوسی ہیں ان کی جب انگلش ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں تو یا تو انہیں وائس مین کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا یا پھر انہیں میگی کے طور پر ٹرانسلیٹ کیا گیا. جب ہم میگی کو دیکھتے ہیں تو میگی یونانی لفظ ماغوس سے نکلا ہے. میگی جو ہے وہ یونانی لفظ ماغوس سے نکلا ہے، اور یونانی زبان میں ماغوس جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ مغوپاتی سے آیا ہے. جو وائس مین مجوسی جس کی انگلش میں ٹرانسلیشن وائس مین یا دا میگی کہا جاتا ہے، یہ میگی یونانی زبان کے لفظ میگوس سے نکلا ہے، اور یونانی زبان میں میگوس کہاں سے آیا؟ فارسی زبان کا لفظ میگو پاتی سے. اب جب یہ میگو پاتی کو جو ہے آپ پڑھتے ہیں تو میگو پاتی جو ان سے ہے یہ وہ لوگ کہلاتے تھے پرشیا کے اندر، مشرق میں یہ وہ لوگ کہلاتے تھے جو ستاروں کی تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے، جو ستارہ سناش کہلاتے تھے. اور یہ ایک مذہب تھا، اور زوروسترینیزم زہرا کی سٹڈی کرنے کا، ستاروں کی جو ہے سٹڈی کرنے والے یہ لوگ ہوتے تھے. آج کل کے دور میں ان کو ایسٹرولوجرز بھی کہا جاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جو
یہ مجوسی ہیں جو میگیز ہیں، یہ اپنے علم کے ساتھ نہایت ہی سنجیدہ ہوتے تھے. یہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے پوری جستجو کرتے تھے، کتابوں کی سٹڈی کرتے تھے. یہ راتوں راتوں جو ہے ستاروں کو سٹڈی کرتے تھے، اور یہ لوگ جو ان سے بظاہر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ کافی امیر ہوتے تھے. یہ عام شخص جو ان سے وہ ستارہ شناسی نہیں کرتا تھا. عام شخص تو محنت مزدوری کرتا تھا. عام شخص جو ان سے وہ اپنے خاندان کی رکھوالی کے لیے ہوتا تھا، ان کی بودباش کے لیے ہوتا تھا. یہ جو لوگ تھے، جو مجوسی یا میگی جو ہے، یا مغوباتی فارسی زبان کا لفظ، یہ عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ کافی امیر لوگ ہوتے تھے. ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ عمارت کی وجہ سے، جیسا کہ آج بھی ہے کہ جہاں سے مرضی آپ نے پیسہ اکٹھا کیا ہو، اگر آج آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کا رہن سہن چینج ہو جائے گا، آپ کی عزت و تکریم چینج ہو جائے گی معاشرے میں. چاہے آپ کسی بھی جائز یا ناجائز ذرائع سے پیسہ حاصل آپ نے کیا ہو. جس طرح ہم سیکھ رہے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مجوسی نہایت امیر لوگ ہوتے تھے، اور عمارت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے، یہ اپنے معاشرے میں ایک مقدم جو ان سے ایک نہایت ہی اعلیٰ رتبہ رکھتے تھے. کلام خدا ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ یہ کتنے مجوسی ہیں. کلام خدا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مجوسی کہاں سے چلے ہیں؟ پورب سے چلے ہیں. اور یہ جو پورب سے چلے ہیں، یہ موسٹ لائکلی یہ فارس اس حکومت ہے، اور یہ اس حکومت سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ یروشلم سے تقریباً 800 سے 900 میل کا فاصلہ ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تین جو ان سے مجوسی ہیں، کہا یہ جاتا ہے، کلام خدا یہ بیان نہیں کر رہا، لیکن جو اسکالرز ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ تین مجوسی ہیں، اور ان کا نام میلخائر، گیسپر اور بیلتزر ہے. میلخائر جو ان سے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس کے سفید بال، سفید داڑھی، اور اس کا جو لباس تھا وہ سنہری لباس تھا، اور یہ کنگ آف عربیہ تھا، یہ عرب کا بادشاہ تھا. اور اپنے سنہری لباس کی وجہ سے اس نے سونا جو ہے وہ پیش کیا. جو دوسرا مجوسی کہا جاتا ہے، جس کا نام گیسپر لیا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کے براؤن کلر کے بال تھے، اس کی براؤن ہی داڑھی تھی، یعنی رنگ کی گئی ہو، اور کچھ جگہ پہ یہ بھی ہے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی، اور اس نے ہرے رنگ کا چوگا پہنا تھا، اور اس کے اوپر گولڈن کراؤن تھا جو تاج، اور گرین جیولز اس کے اوپر لگے تھے. ہرے رنگ کا چوگا، سنہری تاج، اس کے اندر گرین جیولز.
हरे रंग के मोती। और ये शीबा का किंग था, एक किंग ऑफ अरेबिया, ये किंग ऑफ शीबा था। और इसने जो है वो लुबान जो है वो पेश किया। तीसरा जो कहा जाता है जो मजूसी है वो बेल्तजार है, और ये जो है वो ब्लैक स्किन है, इसकी गहरी रंगत है, और इसके काले जो से हैं, या तो दाढ़ी थी या कुछ कहते हैं कि दाढ़ी नहीं थी। और ये जो से इसने पर्पल कलर का चोगा पहनता था ये। और ये किंग ऑफ तारसस एंड इजिप्ट था। एक किंग ऑफ पर्शिया, किंग ऑफ अरेबिया, एक किंग ऑफ शीबा, और ये किंग ऑफ तारसस एंड इजिप्ट। और ये जो है ये मुर लेकर आता है। कलाम खुदा हमें फिर से हम ये सीखेंगे कि ये स्कॉलर्स की स्टडी जो से ये बताती है, लेकिन कलाम खुदा ना ही तीन, ना ही तीन से जायद, और ना ही एक मजूसी का जिक्र करता है। कलाम खुदा कई मजूसियों का जिक्र करता है। हम यहां पे देख रहे हैं कि वो क्या वजूहात हैं। हमने ये तो सीखा कि ये मजूसी करते क्या थे। हम देखते हैं कि ये मजूसी सितारा शिनाश थे। ये सितारे का जो है बहुत ही डीप स्टडी करते थे, गहरी जो सी है उसकी तालीम हासिल करते थे, और ये नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती थी। हम यहां भी ये देख रहे हैं कि इन्हें कैसे पता चला। हमें यह तो पता है कि सितारों की ये तहकीक करते हैं। हम जो देख रहे हो ये देखना चाह रहे हैं कि इन्हें कैसे पता चला कि यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है। तो इसको देखने के लिए हम यहां पे पहली चीज कि हमें अंदाजा होता है कि ये सितारा शिनास है। डेफिनेटली ये स्टार्स की स्टडी कर रहे हैं और अरसा दराज से कर रहे हैं। सिर्फ उस वक्त से इन्होंने शुरू नहीं की जब सितारा नजर आया है, जबकि ये शुरू से सितारों की स्टडी कर रहे हैं। ये इनका ओढ़ना बिछोना है। हम ये भी देख रहे हैं कि ये मजूसी मशरिक के हैं। हम यहां पे तीसरी चीज कि इन्हें कैसे पता चला कि ये यहूदियों के बादशाह का सितारा है, तो हमें यह सीखना होगा कि बनी इसराइल जब गुलामी में बाबल में जाती है, अपनी खताकारी के बायस, अपने गुनाहों के बायस खुदा उन्हें रद्द कर देता है और वो उन्हें बाबल में की सीरी में भेज देता है। बाबल की सीरी में तकरीबन 430 साल वो गुलामी में रहते हैं, और बाबल की सीरी से जब निकलते हैं, बाबल की सीरी में इतनी 430 साल, मिस्र की गुलामी में 430 साल रहे हैं वो जी, बाबल की सीरी में 70 साल। हम ये देखते हैं कि बाबल से जब ये बाहर आते हैं तो 70 सालों के दौरान उनमें से कलाम खुदा में सिखा रहा है कि बहुत से बनी इसराइल वो बाबल ही में जो है क्याम करना पसंद करते हैं, और वो उनके दरमियान बुदबाश अख्तियार करते हैं। इसका मतलब है कि बनी इसराइल के वसीले से बाबल के लोगों को मसाया के बारे में इल्म होता है। और ये कैसे हमें पता चलता है? अगर हम जो है दानियल नबी की किताब 9वें बाब में आए, दानियल नबी की किताब उसका 9वां बाब, क्योंकि मत्ती तो बहुत बाद में आई है,
तो हम दानियल नबी की किताब उसके 9वें बाब में आएंगे और उसकी 24 से 26वीं आयत का जब मुतालिया करें तो कलाम खुदा में यूं सिखाता है, तेरे लोगों और तेरे मुकद्दस शहर के लिए 70 हफ्ते मुकर्रर किए गए कि खताकारी और गुनाह का खात्मा हो जाए, बदकिरदारी का कफारा दिया जाए, अब्दी रासबाजी कायम हो, रोया और नबूवत पर मोहर हो और पाक तरीन मुकाम ममसू किया जाए। बस तो मालूम कर और समझ ले कि यरूशलेम की बहाली और तमीर का हुक्म सादर होने से ममसू फरमारवा तक 7 हफ्ते और 62 हफ्ते होंगे। तब फिर बाजार तमीर किए जाएंगे और फसीलें बनाई जाएंगी, मगर मुसीबत के अयाम में और 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा और उसका कुछ ना रहेगा। और एक बादशाह आएगा जिसके लोग शहर और मकदस को मस्मार करेंगे और उसका अंजाम गोया तूफान के साथ होगा और आखिर तक लड़ाई रहेगी, बर्बादी मुकर्रर हो चुकी है। कलाम खुदा बता रहा है कि 62 हफ्तों के बाद वो ममसू कत्ल किया जाएगा। ये दानियल नबी जो है वो पेशन गोई करता है कि 62 हफ्तों के बाद ये मसाया के बारे में पेशन गोई है। और बनी इसराइल जौन सी है वो बाबल की सीरी में मौजूद है, तो वो 70 साल तक वहां पे मौजूद रहती है। और दानियल जौन सा है वो एक आला ओहदे पे बाबल के अंदर मौजूद है। और दानियल की बात को जौन सा है वो बाबल के लोग समझते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं। और हमें यहां से भी पता चलता है कि वो मसाया को जौन सा है वो कैसे जानते हैं, वो दानियल नबी की इस, क्योंकि जो तौरा है, जो कलाम मुकद्दस है, वो बाबल की सीरी के दौरान बनी इसराइल के पास मौजूद है। और बाबल के लोग जो है उस कलाम मुकद्दस को पढ़ रहते हैं, समझते हैं कि ये किसके मुतालिक बयान किया जा रहा है। और हम देखते हैं कि जब 6ठी सदी में जब ये बनी इसराइल बाबल की सीरी से बाहर आती है तो कलाम खुदा में सिखाता है कि बेशुमार बनी इसराइल जो है बाबल के अंदर अभी भी बुदोबाश रखने को तरजीह देते हैं। हम यहां भी ये सीख रहे हैं कि ये कैसे इन्हें पता चला यहूदियों के बादशाह का। एक तो हमें अंदाजा हुआ कि दानियल नबी की जो उनसी है, क्योंकि वो एक ओहदा रखता था बाबल में, जब वो बाबल की सीरी में बनी इसराइल जाती है, एक तो उस ओहदे की वजह से जो उसने पेशन गोई की, तो उस पेशन गोई की जो सी है वजह से जो है ये जो वहां के लोग हैं वो मसाया के बारे में जानते हैं। इसके अलावा जो हमें अंदाजा होता है कि बाबल के लोगों को एक्सेस है, पहुंच है उन्हें उनकी कलाम मुकद्दस की तरफ। वो कलाम मुकद्दस को पढ़ना चाहें तो वो पढ़ सकते हैं, वो कलाम मुकद्दस की पेशन गोइयों को सीखना चाहें तो वो सीख सकते हैं, वो मसाया की जो सी है आमद को जानना चाहें तो वो जान सकते हैं। और इसके अलावा जो है अगर हम गिनती की किताब 24वें बाब में आए तो वहां पे भी हमें पता चलता है कि एक पेशन गोई है। गिनती की किताब 24वां बाब और उसकी अगर हम आयत नंबर जो है वो 17वीं देखें, गिनती की किताब 24वां बाब और उसकी 17वीं आयत, तो कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, मैं उसे देखूंगा तो सही पर अभी नहीं, वो मुझे नजर भी आएगा पर नजदीक से नहीं। याकूब से एक सितारा निकलेगा, याकूब से एक सितारा निकलेगा और इसराइल में से एक असा उठेगा और मोआब की नुआही को मार मार कर साफ कर देगा और सब हंगामा करने वालों को हलाक कर डालेगा। ये वो सितारा है जो मसाया की पेशन गोई के मुतालिक किया गया है। और ये जो है ये प्रोफेसी जो है, ये पेशन गोई जो है, ये बलाम जो है वो करता है। और जो है बलाम को जब बुलाया जाता है कि तू बनी इसराइल के ऊपर लानत कर, तो वो खुदा को जो है वो तरजीह देता है बजाय इसके के उस वक्त के हाकिम को तरजीह देने के। और वो बावजूद इसके कि उसका प्रेशर है,
वो जो है उसके प्रेशर को कबूल करने से इनकार करता है और ये पेशन गोई करता है कि मसाया जो उनसे है वो आएगा। और यही वो रीजन है जो कि याकूब का सितारा, वो जब उस सितारा जो उनसे वो देखते हैं, वो ये जानते हैं, उनका एक्सेस है जो है कलाम मुकद्दस की तरफ। बनी इसराइल गुलामी के दौरान वहां पर मौजूद है, कलाम खुदा वहां पर मौजूद है, दानियल नबी वहां पर मौजूद है। दानियल नबी एक ऊंचे ओहदे पर मौजूद है जब वो मसाया की पेशन गोई करता है। बलाम जो है उसकी पेशन गोई मौजूद है कि मैं अभी नहीं उसे देख सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि वो कब आएगा। और वो जब आएगा तो तमाम जो बुरे लोग हैं, जो खता का लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, उनका वो इंसाफ करेगा। और वो यकूब का सितारा, और इसी सितारे को जो उनसे वो जब निकलता है तो वो ये स्टडी करते हैं, और इस स्टडी करने की वजह से वो कहते हैं कि यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है। और यहूदियों का बादशाह उनके नज़दीक और सब के नज़दीक जो एक आम फहम जो उनसे है, जब उसे देखता है तो यही वो देखता है कि यहूदियों का बादशाह यरूशलेम में सुकूनत करेगा। और हम भी जानते हैं कि मसाया की जब दूसरी आमद होगी तो वो यरूशलेम में उसकी आमद होगी, वो किसी और जगह पे आमद नहीं होगी, वो बैतलहम में आमद नहीं होगी, वो यरूशलेम में आमद होगी। और बैतलहम भी जो है यरूशलेम से 2 से 2.5 मील के फासले पर है, वो इतना दूर नहीं है, उसकी नुआई में मौजूद है। यरूशलेम में जो है उसकी आमद होगी। और ये जो मजूसी हैं ये जानते हैं कि मसाया जो है वो आ चुका है, मसाया जो है जिस्म की सूरत अख्तियार कर चुका है, वो पैदा हो चुका है। वो पूरब में उसका सितारा देखते हैं और उसका सितारा देखकर वो यरूशलेम तक पहुंचते हैं। आज हम यहाँ पे इसको ख़त्म करेंगे वीडियो की तवालत की वजह से। हम नेक्स्ट टाइम इसको जब सीखेंगे तो इसके अंदर ये देखेंगे कि ये कितने जो उनसे मजूसी आए। इसके अंदर हम जो और सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि जब उन्होंने मसाया को देखा तो उस वक्त उन्होंने क्या किया। इसके बाद इसके अंदर हम जो उनसे स्टार ऑफ बैतलहम को भी जो उनसे वो स्टडी करेंगे। हम जो है वो कलाम खुदा का शुक्र करते हैं कि वो हमें जो है तरह बतरह जो है वो अपने कलाम को सीखने के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। कलाम खुदा इतना बड़ा भेद है कि हम जो है वो एक एक भेद को जो है वो सीखने के लिए जो उनसे जिस तरीके से वो हमें हदायत देना चाहे घंटों जो है वो सर्व कर सकते हैं। उसके भेद को सीखने के लिए हमने इसको चंद साल पहले मजूसियों को पढ़ा, अब उसने चंद साल के बाद मजीद उसके अंदर जो है हमें सीखने का जो है मौका दिया है। और हम शुक्र करते हैं उसका कि हम उसके सिखाए हुए असूलों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जो है वो बसर करना चाहते हैं। तौफीक उससे मांगे, उससे मदद मांगे कि वो हमारी इन मुनाजातों को जो है वो सुने और उन्हें कबूल करे, और हमारी ज़िंदगियां सिर्फ और सिर्फ उसी के सिखाए हुए असूलों के मुताबिक बसर हो सकें। यहोवा बाप सब लोगों को जो उसके हुक्मों पर अमल करने को अपनी ज़िंदगी में तरजीह देते हैं बरकतों पर बरकतें दे। आमीन।